বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে একটি খুব সুন্দর ভিডিও দেখাতে চলেছি। এটা কলকাতার তপসিয়া মোল্লাপাড়াতে জিগরি শাহাদাত হচ্ছে মহরমের উপলক্ষতে। তো এই ভিডিওটি খুব সুন্দরভাবে আপনাদেরকে দেখাবো। পাড়ার ছেলেরা কত সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠানটি করেছে। আপনারা দেখতে থাকুন বন্ধুরা, আমার সাথে দেখতে থাকুন। এটি কলকাতা তপসিয়ার মোল্লাপাড়া ১৩ নম্বর গলি। তো এই গলিতে জিগরি শাহাদাত অনুষ্ঠানটি হচ্ছে। পাড়ার ছেলেরা সব করেছে, কত সুন্দর করে স্টেজটি সাজাচ্ছে দেখুন বন্ধুরা। এই স্টেজটি সাজানো হচ্ছে এখন। এটা হচ্ছে মাইক সিস্টেম, লাইটিং সিস্টেম, কত রকমের মেশিন আছে দেখুন। এটা হচ্ছে লাইট, আর এটা মাইকের সব সিস্টেম আছে বক্সের। এই দেখুন কত রকমের সব মিউজিক সিস্টেম রয়েছে। তো আপনারা দেখবেন বন্ধুরা, এই হচ্ছে স্টেজ। স্টেজটি সাজানো হচ্ছে। এই হচ্ছে গোলাপ ফুল, ফুল দিয়ে স্টেজটিকে সাজানো হচ্ছে। সব ছেলেরা মিলে কত সুন্দরভাবে তৈরি করছে স্টেজটি, কারণ ফুলগুলো সাজানো হচ্ছে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে তাবাররুক, যেটা সকল মিলে খাওয়া হবে। এটা সকলকে দেওয়া হবে, খাওয়া হবে, তাবাররুক বাঁটা হবে। এই ডেগের মধ্যে তাবাররুক রান্না করা হচ্ছে। দেখুন কত সুন্দরভাবে রান্না করছে। এই দেখুন কটি ডেগ রান্না করা হচ্ছে। এই হচ্ছে বাবুর্চি, যেটার নাম হচ্ছে শাকিল ভাই। খুব সুন্দর এই তাবাররুকটি তৈরি করেন। এটা হচ্ছে আটা, মানে আটাটা ছেনে এই হাঁড়ির মানে বাসনের নিচনে লাগানো হবে, যাতে ভালো করে তৈরি করা হয়। এই দেখুন সবতে লাগানো আছে আটাটি। এটি হচ্ছে মেওয়া। আর বন্ধু, এই আরেকটি বাবুর্চি রান্না করছেন, চামচ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, মানে ওটা ওখানে আলু তৈরি হচ্ছে। এ হচ্ছে চাল। এই বাবুর্চিটি কিছু দেখছেন মনে হয়। তো বন্ধুরা দেখতে থাকুন, কত সুন্দরভাবে আজকের প্রোগ্রামটি করা হচ্ছে। এটি হচ্ছে মেওয়া। মেওয়াটি এই তাওরুক মোবারকে দেওয়া হবে টেস্টি বাড়াবার জন্যে। বিরিয়ানি খেচড়া যাকে বলা হয়। আর এই স্টেজটি পুরো তৈরি করা হয়ে গেল। মৌলভী সাহেবও এসে গেছেন, আরও মৌলভী সাহেব আসবেন এখন। আমার সাথে দেখতে থাকুন বন্ধুরা, এখানে আরও মৌলভী সাহেব আসবে। মৌলভী সাহেব নাত বলবেন, আরও বয়ান করবেন, আরও অনেক মৌলভী সাহেবরা আসবে। তো আমি আপনাদেরকে এখানে দেখাবো ভিডিওটিতে, আপনারা আমার সাথে দেখতে থাকুন। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে কত সব ভিড় করে বসে আছেন জিগি সার্টিটি দেখবার জন্যে। বাচ্চা, বড়, মহিলা সকলেই আছেন। এই পাড়াতেতে খুব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটি করা হয়। যে কোনো অনুষ্ঠান খুব সুন্দরভাবে এখানে করা হয়। সব সব জিনিসেতে এনজয় করা হয়। তো দেখুন। हमारे 12 इमाम देखो बुलंद वाला मकाम देखो हमारे 12 এখানে সকলে ভিড় করে বসেই আছেন। তো বাচ্চারা আছে, বড়রা আছে, সকল মহিলারাও আছে। আপনারা দেখুন, খুব সুন্দরভাবে এনজয় করা হচ্ছে। দেখুন কত ভিড়। তো দেখতে থাকুন বন্ধুরা। এখানে ছোট একটি বাচ্চা কত সুন্দর নাচ গাইছেন। তো আপনারা দেখুন আর শুনুন বন্ধুরা, কত সুন্দরভাবে একটি বাচ্চা ছেলে নাচ গাইছেন। मोहम्मद मदीने में मौजूद है, हमने आंखों से
सुनला कर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद दे सबा ऐसी खुशबू चमन के फूलों में का ऐसी खुशबू चमन के फूलों में का जो नबी के पसीने में मौजूद है हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है यीशु है वो शम्स रुखे अनवर वल्लैल जो यीशु है वो शम्स रुखे वशम्स रुखे वशम्स रुखे जिस रुख से उन्हें देखो जिस रुख से उन्हें देखो कुरान के पारे हैं जिस रुख से उन्हें देखो कुरान के पारे हैं वो नूरी बदन वाले सरकार हमारे हैं जिस नूर से नूरानी ये चाँद सितारे हैं की इसमें जा खूने बदल है मेरा हुसैन जब नाना के कांधे पर बैठ गए नाना सजदे में थे मगर नाना ने सजदा नहीं उठाया सजदे से सर को नहीं उठाया क्या मुकाम है मेरे हुसैन का ऐसी अजीम जात है मौला हुसैन की ऐसी अजीम जात है मौला हुसैन की ऐसी अजीम जात है मौला हुसैन की जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है रसूल के सजदों में तूल
हुसैन सुनिए, शोहदा करबला को सुनिए और सुनकर जो है ईमान को ताजा कीजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि 1450 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन फिर भी आज लोग जो है हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं भूल पाए हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके नाम पर महफिल सजाते हैं, उनके नाम पर जो है प्रोग्राम करता है। क्यों? इसलिए कि हुसैन को निस्बत है किससे? नबी से, और नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं। और कलमा की तासीर यह है कि मरते दम तक, जब तक हम अपनी आल से, अपनी औलाद से, अपनी जान से नबी से ज्यादा मोहब्बत नहीं करेंगे, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो तकमील ईमान के लिए हुसैन की मोहब्बत भी जरूरी है, हुसैन की मोहब्बत भी जरूरी है। बिना हुसैन की मोहब्बत के ईमान की तकमील नहीं हो सकती। तो ईमान की तकमील के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में बसाना जरूरी है। आइए सुनते हैं वाकयात की रोशनी में। एक नुक्ता में ले चलता हूं मैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लेके आए थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त था, जब आज दुनिया में तशरीफ लेके आए थे, सारा आलम खुशी मना रहा था, फरिश्ते भी खुशियां मना रहे थे, फरिश्तों की जमात आमना के घर पर मौजूद थी, सारे तरफ फरिश्तों का हुजूम था। एक ही आवाज आ रही थी, अस्सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी के पैदाइश पर सारा आलम खुशी मनाए, सारी दुनिया खुशी मनाए, चरिंदो परिंद, शजरो हजर खुशको। ऐ अली सुनो, मैंने बड़ा का नाम हसन रखा है, इसका नाम मैं हुसैन रखता हूँ, इसका नाम मैं हुसैन रखता हूँ। जब ये नया नाम लोगों ने सुना, साहब करम ने सुना, कहा कि रसूलल्लाह ये तो बिल्कुल नया नाम है, कभी इससे पहले हुसैन नाम हमने उन्हें होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, दिन रात दिन गुजरता है, रात गुजरती है, बड़े हो जाते हैं। गोद किसका? नाना, आका दो जहां का। कंधा किसका? आका दो जहां का। सोबत किन की? नबी दो जहां की। तालीम किससे हासिल कर रहे हैं? जो दोनों जहां के मालिक को मुख्तार कर रहे हैं। और दश्ते आदम में जो रहमत की घटा छाई है, आप आए, आप आए तो जमाने में तौफीक अता फरमाई। मौला हमारी शिरकतों को कबूल फरमाए। आज का ये जलसा ज़िक्र शहादत, जो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, जिनकी मेहनत, जिनकी मोहब्बत पर मौला हुसैन की मर्जी के साथ मैं आपके सामने लब्बैक कहता हुआ आया। मेरे भाई जनाब मेहरान साहब, वो उनके साथ जितने भी बरादरान हैं, उन सबों की मोहब्बत है। मौला मैं दुआ करूंगा कि इनके नेक जज्बे को सलामत रखे। और तमामी हजरात यहाँ बैठे हैं, हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं। के इस्लाम में नमाज है, फिर कहने लगे अरब के इस्लाम में रोजा है, अरब के इस्लाम में हज है, अरब के इस्लाम में ज़कात है। हमने कहा नहीं नहीं, आप अभी वहीं तक रुक गए, जरा मैं आगे बढ़ के बताता हूँ। अरब के इस्लाम में फकत नमाज नहीं है, अरब के इस्लाम में, आज के अरब में फकत इस्लाम नहीं, फकत नमाज नहीं, फकत रोजा नहीं, फकत हज नहीं, फकत ज़कात नहीं, अय्याशी भी है। देखता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं, इसका जवाब हुसैनी का खाने में ना हो। अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें जो अता करे उसे ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। अब आइए तारीख अरब देखते हैं। आज के जमाने में बहुत कोई हमें अरब दिखाते हैं। अरब के इस्लाम में अलमदारी नहीं है, अरब के इस्लाम में ताजियादारी नहीं है, अरब के इस्लाम में जिक्र हुसैन नहीं है। आइए मैं अरब दिखाता हूँ। लोग कहते हैं अरब ये क्या है? आज के जमाने में 4 दिन अरब से रह के आके हमको अरब सिखाते हैं, अरबी बताते हैं कि अरब कहते किसको है। एक अरब वाले कहने लगे अरब में ये इस्लाम नहीं है जो इस्लाम आप सिखाते हैं, अरब में वो इस्लाम है जो हम बता रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा रसूल और मैं, सुनिएगा आयत हमने पढ़ी है, अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह और उसका रसूल
जो तुम्हें दे उसे ले लो। क्या है? अल्लाह और उसका रसूल जो तुम्हें दे उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। मैंने उस आयत की तिलावत की है कि जिस आयत को लेकर छोटे पैजामे वाले से लेके ऊंचे पैजामे वाले तक सब इसी काबा के दीवार के करीब गई, तो इस अली के जाने की बरकत से, अली के जलाल की गर्मी से, इस बोलते हुए कुरान की गर्मी से खाना काबा के दीवार में दरार पड़ गई, दीवार फट गई। तो बात समझ में आ गई कि अब बोलता हुआ कुरान अलग, खामोश कुरान अलग। कुरान के नाम पर चंदा मांगो, ज़कात मांगो, फितरा मांगो, कुरान शिकवा नहीं करेगा। मगर जब बोलते हुए कुरान के खिलाफ काम करोगे तो ये बोलता हुआ कुरान हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाएगा। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।